आज हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिसमें काफ़ी हाई ग्रोथ नज़र आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। तो पहला कंपनी का नाम है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स। और कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन अराउंड 17% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, व्हिच इज़ वेरी गुड। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन पॉजिटिव। और इसका केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ हैज़ आल्सो बीन पॉजिटिव। But if we don't take the capital expenditure which has been done in the previous year, because that time it was one of the highest capital expenditure it has done in the entire decade. इससे ये समझ में आता है कि कंपनी का काफ़ी हाई प्लान्स ऑन एक्सपेंशन और प्रोमोटर का भी काफ़ी फेथ है अपनी कंपनी में, because recently it had acquired the entire stake of Canada-based private equity firm Fairfax India Holdings Corporation. और इससे प्रोमोटर का स्टेक has increased to 74%. and it use its own funds rather than the company funds. Debt equity ratio का बात करें तो it is 0.7 और इसका receivable days is around 2 months. ROE यानी return on equity has been around 25% on an average in the last few years और ROCE यानी return on capital employed has also been around 25%। और बहुत कम कंपनीज का दोनों ROE और ROCE इतना हाई होता है। And this company is the leading manufacturer, supplier and exporter of aroma chemicals. और ये जो मैन्युफैक्चर करती है अरोमा केमिकल्स, दैट इज फ्रॉम द वैरायटी ऑफ terpene molecules which is actually serve as a building block for the flavors and the fragrance industry. And it has products across 4 chemical categories which are pinene, citral, sandalwood and phenol. और कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है विद द टॉप एफएमसीजी कंपनीज। और इनफैक्ट एक्चुअली 1992 में कंपनी ने बनाना शुरू कर दी थी अरोमा केमिकल्स एंड इट स्टार्टेड विद ओनली 2 प्रोडक्ट्स। और सिंस कंपनी का एक्सपर्टीज है इन पाइनिंग केमिस्ट्री और अच्छा खासा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है, इस कारण से कंपनी has actually expanded its products over the years to 65 products as of now. कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है महाराष्ट्र और गुजरात में with expertise to perform critical reactions like hydrogenation, condensation, then Grignard reactions, as well as unit operations like pyrolysis, reactive distillation, and high vacuum distillation as well. In fact, the company does continuous distillation to deliver consistency in odor and prescribe key parameters in an industry driven by stringent olfaction standards. Company is also the partner in choice to the top F&F houses यानी flavors and fragrance houses, एंड इसमें भी ऐसे कंपनीज है जैसे जुवार्डन विच इज बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, देन फिमेनिश विच इज आल्सो बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, देन सिमराइज विच इज बेस्ड इन जर्मनी एंड लीडिंग एफएमजी प्लेयर्स लाइक पीएनजी एंड हेंकर। एक्चुअली कंपनी वर्ल्ड का टॉप 10 फ्रेग्रेंस कंपनीज को केटर करती है और वो जो टॉप 10 फ्रेग्रेंस कंपनीज है दैट एक्चुअली कंट्रोल्स 2/3 ऑफ द एंटायर फ्रेग्रेंस मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। और ये एफ यानी फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस का क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड बेवरेज, होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट एफ इंग्रेडिएंट्स काफ़ी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। फ्लेवर सेगमेंट में केवल 2% और फाइन फ्रेग्रेंसेस में 4 to 6%। एंड इन स्पाइट ऑफ रिप्रेजेंटिंग सच अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट, it has significant influence on purchase decision and customer satisfaction. वैसे देखा जाए तो broadly F&F industry has 4 main stakeholders which are raw material suppliers, base ingredient manufacturers, F&F blends manufacturers and end consumer industries. अब यहाँ क्या है, base ingredients are divided into further natural base ingredients which is derived from spice, herbs and naturally available crops through process of extraction. और फिर synthetic base ingredients होते हैं which starts from petrochemical derivatives or derivatives of other raw materials like pine oil, and the final ingredient is arrived at through a series of chemical reactions. और अपने country में obviously natural base ingredients form 70% of the total market क्योंकि यहाँ जो raw material है वो easily available हो जाता है। ऐसा नहीं कि synthetic base manufacturing एकदम नहीं के बराबर है पर छोटा पार्ट है and it is more involved in manufacturing of aroma chemicals. और क्या आपको पता है 60% of the total base ingredients is actually exported. Globally हर साल अरोमा केमिकल्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है
and it is due to the growing trend of personal grooming coupled with increasing demand for luxury and exotic fragrances. और कई सारे फैक्टर्स है जिसके कारण फ्रेग्रेंसेस का डिमांड बढ़ रहा है हर साल। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये हो गया कि देयर हैज बीन इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम। डेफिनेटली देखिए पैंडेमिक के कारण एक बार जरूर फर्क पड़ा, पर ओवरऑल अपना डिस्पोजेबल इनकम अराउंड द वर्ल्ड इंक्रीज ही हो रहा है हर साल। इसके अलावा देयर आर मोर लोकल कंज्यूमर्स, स्पेशली यंग कंज्यूमर्स हु आर वेरी मच कंसंट्रेटेड ऑन क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और ये पैंडेमिक के कारण और फोकस शिफ्ट हो गया ऑन हाइजीन प्रोडक्ट्स, और उसमें लोगों को चाहिए न्यू एंड इनोवेटिव फ्रेग्रेंसेस यूज्ड इन हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स एंड फ्लोर क्लीनर्स। वैसे देखा जाए तो अपना अर्बन मार्केट यानी सिटीज और जो मेजर टाउन्स है, यहाँ तो के इंग्रेडिएंट मार्केट्स काफी हद तक वेल डेवलप्ड है, क्योंकि पिछले काफी सालों से वी हैव बीन यूजिंग द FMCG प्रोडक्ट्स, वो भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। पर जो रूरल मार्केट है दैट इज स्टिल काफी हद तक under penetrated, and at this time the FMCG companies have a huge opportunity to push their products and develop the ingredient markets even in the rural India as well. कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि it is one of the few global players who has the capacity to manufacture key inputs alpha and beta pinene from basic raw materials, then crude sulfate turpentine and gum turpentine oil. और इस backward integration के कारण जो fluctuation होता है in the prices of अल्फा एंड बीटा पेनाइन्स, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी इज ऑल्सो सेट अप अ रिफाइनरी फॉर प्रोसेसिंग वेस्ट फ्रॉम पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस की ब्लॉकिंग ब्लॉक्स फॉर अरोमा केमिकल्स। और रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के साथ सप्लायर्स के साथ तो कंपनी का अच्छा खासा अरेंजमेंट है। इसके अलावा इवन विद द कस्टमर्स इट हैज अ टाई फॉर 65% ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑन ईयरली बेसिस, इंसुलेटिंग इट फ्रॉम फ्लक्चुएशन ऑफ की प्रोडक्ट्स इन द स्पॉट मार्केट। और कंपनी का मानना है कि इसका ग्रोथ कंटिन्यूसली आते रहेगा फ्रॉम द डेवलपिंग एंड द इमर्जिंग मार्केट्स, स्पेशली नाइजीरिया, इजिप्ट, UAE, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो यह है दैट द रॉ मटेरियल्स कंस्टिट्यूट्स ऑफ 60 to 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और यहाँ अगर रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस बढ़ जाता है तो स्पेशली बेस इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर को काफी हद तक फर्क पड़ता है, and the profitability will be definitely impacted. दूसरा, इस कंपनी का majority of the products is produced from pine based chemistry, और यहाँ क्या है gum turpentine oil which is a major raw material has been highly volatile over the years. इसके अलावा कंपनी के margins also exposed to the high volatility in the prices of crude derivatives based raw materials which form close to 30% of the raw material component. और इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी एक्चुअली एंटर्स इनटू हाफ ईयरली या एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स विद इट्स सप्लायर्स। फिर एक्सपोर्ट्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू लार्ज पोर्शन ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी। और यहाँ भी कि अगर करेंसी का अप्रिसिएशन काफी होता है देन इट विल ऑब्वियसली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। पर यहाँ के रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स फॉर्म्स अ पार्शियल नेचुरल हेज एंड आल्सो फ्रॉम द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल। और फाइनली एनवायरमेंटल रेगुलेशन इज फोर्सिंग कंपनी टू फॉलो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। और यहाँ क्या है, वैसे देखा जाए तो एनवायरमेंट के लिए फायदा है, और यहाँ क्या है स्पेशली वेस्ट वाटर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सिंथेटिक अरोमा केमिकल कंसिस्ट्स ऑफ मेनी एफ्लुएंट्स व्हिच नीड्स टू मीट एप्लीकेबल रेगुलेशंस फॉर सच डिस्चार्ज एंड व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या है स्ट्रेट अवे प्लांट को लोग शट कर देते हैं। और आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस है। पहला होगा ₹5000 का, जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। फिर है 7000 का, जहां बेसिकली 15 स्टॉक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड फाइनली 10000 का, वेयर आई विल शेयर नेम्स ऑफ 25 स्टॉक्स विथ यू। और बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और अब अगले कंपनी की तरफ चलते हैं, और इस कंपनी का नाम है RACL गेयरटेक। और कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 15% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। और इसका CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद इसका FCF हैज बीन नेगेटिव। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका काफी अच्छा खासा केपेक्स किए ओवर द लॉन्ग टर्म। 10 साल में ऑलमोस्ट एवरी नाउ एंड देन ये केपेक्स करती गई है, और लास्ट 3 साल में तो काफी केपेक्स की है। इट हैज आल्सो बीन अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी। इनफैक्ट पिछले 10 साल में द कंपनी का सेल्स हैज इंक्रीज बाय 3.5x। डेट इक्विटी रेशियो 0.8 है,
और रिसीवेबल डेज अराउंड 3 मंथ्स का है। ROE का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दैट हैज बीन अराउंड 12% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 11%। कंपनी का हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, एंड दिस कंपनी वाज एक्चुअली क्वालिफाई एज अ रैग्स टू रिचेस्ट स्टोरी इन द ऑटो एंसिलरी सेक्टर। कंपनी का पहला नाम था रौनक ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, एंड इट हैड टर्न्ड सिक एंड वाज एक्चुअली अंडर द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन इन 2001। और पुराना मैनेजमेंट को हटा दिया गया था और नया CMD आए इन द नेम ऑफ गुशरण सिंह, हु इज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एंड इन्होंने कंपनी को कहां से कहां ले गया। इनफैक्ट BIFR से भी नवंबर 2007 में कंपनी निकल गई थी। इनफैक्ट द कंपनी हैज अचीव्ड consistently strong growth in both top line and margins, and that has been best in the entire automotive industry. In fact, the company outperformed the competitors in the auto ancillary sector by huge margin. इसका OPM around 25% था compared to the other companies जिनका operating margin profit was around 10 to 12%, तो almost double profit करी थी than its competitors. And its major strength has been developing and expanding relationships with its strong clients. It is also getting future ready to supply to EV यानी electric vehicles, and is already making new components that are platform agnostic. और ये platform agnostic मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरह का प्लेटफॉर्म में इसका components यूज हो पाएगा. It can be used in various kinds of platforms. So that's again a major advantage this company will be getting. The company manufactures automotive components like transmission gears and shafts, sub-assemblies, precision machine parts, and industrial components used in two-wheelers, tractors, passenger cars, commercial vehicles, and all-terrain vehicles, and also cargo vehicles as well. और देखिए डोमेस्टिक मार्केट में अपना डोमिनेंट पोजीशन बनाने के बाद ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी इट हैज बिकम वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स टू लार्ज OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, और करेंटली इट अर्न्स 70% ऑफ इट्स रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। और कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है विच आर स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, एंड वन इज इन उत्तर प्रदेश और दूसरा है नोएडा में। और केवल यही नहीं, इट ऑल्सो हैज 25 एकर्स ऑफ सरप्लस लैंड, इसलिए बाद में भी जब एक्सपेंशन करेगी तो उसको अलग से केपेक्स नहीं करना पड़ेगा लैंड के ऊपर, बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। और एक और बहुत बड़ा स्ट्रेंथ ये रहा कि देयर हैज बीन कस्टमर स्टिकनेस, यानी कस्टमर्स काफी साल तक कंपनी के साथ जुड़े रहे, एंड दिस स्पीक्स हाई वॉल्यूम्स ऑफ द मैनेजमेंट क्वालिटी एंड इट्स एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। कंपनी का एक ही स्ट्रैटेजी रहा है, वी इन्वेस्ट व्हेन द कस्टमर डिमांड्स, and it uses the process of concurrent engineering, yani the company gets involved with the customer while developing new platform at the design stage itself, and uses customer research and development to develop its own process, yani its own R&D as well. और इसका क्लाइंट्स का बात करें तो एक से एक है, जैसे एक हो गया ZF which is actually a Fortune 500 company and it has a turnover of 2,50,000 crores, और यहाँ our Indian company is supplying a fully finished part यानी chassis for conventional as well as electric vehicles. और ZF actually diversify करिए अपने ऑस्ट्रेलियन operations को चाइना में भी, और वहाँ भी it has chosen RACL as its supplier. The company is also entering into premium car market and it will be making components for BMW 7 Series car. In fact, the company has already bagged 3 to 4 more projects from them, and इस प्रोसेस में और भी प्रोजेक्ट्स मिलने का चांसेस है। It has also created entire drive of kinematics of the e-scooter for the client. और 3 साल पहले जब यूरोपियन कंपनी ने अप्रोच किया था तो कंपनी ने कहा कि भाई हमारा कॉम्पिटेंस जोन के बाहर है, तुम बना नहीं सकते। पर पिछले 3 साल में कंपनी ने अपना रैंप अप कर लिया ऑपरेशंस को, और वो अपना इंडियन कंपनी विल बी द सिंगल सप्लायर टू दैट कंपनी फॉर द नेक्स्ट 10 years. इनके अदर क्लाइंट्स का बात करें तो हो गए जैसे डाना, होंडा, यामाहा, TVS, KTM एंड पियाजो। अब देखिए कंपनी का एक्चुअली जो ऑपरेटिंग मार्जिन है जो इतना हाई रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट मार्केट, क्योंकि 70% ऑफ द रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट। अब डोमेस्टिक मार्केट काफी प्राइस सेंसिटिव रहा है, इसलिए यहाँ द कंपनी इज अ प्राइस टेकर, यानी कंपनी डिसाइड नहीं करती है प्राइसेस बल्कि द मार्केट डिसाइड्स द प्राइसेस, इसलिए डोमेस्टिक मार्केट में इसके मार्जिन नॉर्मल रहे, इनफैक्ट काफी कम रहे कंपेयर टू द एक्सपोर्ट सेगमेंट, क्योंकि वहाँ के निश सेगमेंट्स को सप्लाई करती है और लग्जरी कार मेकर्स को भी सप्लाई करती है, इसलिए कंपनी को हायर मार्जिन्स मिल जाता है। एंड इसलिए द कंपनी हैज बीन फोकसिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आए,
because that is where from where it is getting the higher margins. कंपनी का हमेशा फोकस रहे to become more efficient, इसलिए जैसे पहले 100% ऑफ द फॉर्जिंग प्रेस आउटसोर्स होता था, अब 40% ऑफ द फॉर्जिंग प्रेस इज डन इन हाउस, तो वहां काफी सेविंग होता है कंपनी को, ऊपर से क्वालिटी के ऊपर भी काफी कंट्रोल रहता है। देखिए कंपनी का भी मानना है कि ई मोबिलिटी इज द फ्यूचर, बट एट द सेम टाइम इट बिलीव्स दैट द ट्रांजिशन टू एनी न्यू टेक्नोलॉजी और सोल्यूशन इज गोइंग टू बी ग्रेजुअल। उनका मानना है दैट दिस इंडस्ट्री विल इनिशियली कैप्चर द स्मॉल बाइक सेगमेंट, यानी 100 सीसी से 125 सीसी, इसके अलावा पैसेंजर कार्स और सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। पर जो लॉन्ग हॉल ट्रक्स है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और लग्जरी स्पोर्ट्स बाइक्स है, ये सब में समय लगेगा आने में। अभी जो हाहो हो रखा है बहुत ईवी स्टोरी को लेके कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरा छा जाएगा सब जगह, ऐसा इतना फटाफट नहीं होगा, टाइम लगेगा, होगा जरूर, फिर भी ग्रेजुअल शिफ्ट, इट वोंट बी अ सडन शिफ्ट। So you can easily invest in these companies over a long period of time rather than just flocking to each and every company which is getting into the EV sector. The companies already started supporting EV and hybrid vehicles through technology and machine adaptations, and it is also diversifying into areas which will not be impacted by the EVs. रिस्क की तरफ चलते हैं तो पहला रिस्क तो यह है कि 85% of revenues comes from the top 5 clients, और यहाँ के अगर कोई एक भी क्लाइंट का प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में कुछ चेंजेस आ जाता है तो दैट वुड अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। दूसरा रिस्क है कि कंपनी का हाई डेटर डेज है, पर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि एक्चुअली कंपनी का दोनों प्लांट्स, जैसे मैंने कहा पहले, वो नोएडा और उत्तर प्रदेश में, अब वहां से 15 दिन लगता है कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो पोर्ट तक पहुंचने में। उसके बाद इन एक्सपोर्ट बिजनेस इट टेक्स मिनिमम ऑफ 60 डेज फॉर पेमेंट्स फ्रॉम बिल ऑफ लैंडिंग। यहाँ भी कंपनी बोलती है that it follows prudent accounting policies and sets off the receivables only after they come back to the bank. देखिए, there's no doubt it's a very high growth company and it's a small cap. In fact, इसका market cap is only around 600 crores. पर यहाँ एक चीज है, since it's a small company और it's only listed in BSE, इसका stock भी highly illiquid है. So you have to be careful. देखिए अगर market गिरता हो, अगर correction आता है, तब में भी ये stock का भी prices काफी हद तक करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ के शॉर्ट टर्म में आपको ये थोड़ा केयरफुल रहना होगा, पर लॉन्ग टर्म में तो नो डाउट कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है। तो इस कंपनी में तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसका शेयर प्राइस भी काफी बढ़ गया है, तो इसमें आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए, एक बार में ज्यादा पैसा मत लगाइए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप की मोर इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।